Welcome. This is your instructor Balochistan and I teach to University of Balochistan learners. If you want to connect with me or ask me anything related to English language teaching or linguistics, you can add me to professional website which is LinkedIn. So today we are going to discuss the tasks that we have been doing since June. So let's get started. Week 9, which was about speech and language development. But before that, you were like, you could overview some of the things that we had already covered in midterm. So this is like a crash course of language. They have just gone through those important points regarding linguistics. So the task was to share some of the examples and also post to at least two or three of the participants. And grading was again either you are competent or you are not yet competent. So what it means is that if you are graded competent, then that actually means that you have above 90 or above 80 score, right? And if you are graded not yet competent, that means that you are passed, but this is graded activity based on competencies, and you are expected to reply to your peers, and also your attendance is based on leaving comments, and your grades or your score is dependent on how you are answering. If you have missed part of the question, then you are graded not yet competent, meaning that if you have if you have shared examples but you haven't responded to your peers, so you have missed part of the question, part of the task. Similarly, if you have given example of grammar but you have missed the other two, then you are graded not yet competent. Even though you have completed all the tasks, like you haven't missed anything, there are no grammatical mistakes, but still you are graded not yet competent. उसकी वजह ये हो सकती है that you have taken someone else's work and have represented it as your own work without mentioning the source. तो उसको हम कहते हैं plagiarism. ठीक है? Let me write it. Right? तो उसमें उस सिचुएशन में यू आर ग्रेडेड नॉट येट कॉम्पिटेंट, और उसका ये हो सकता है that you are allowed to resubmit the work, और उसमें आपके पास डेडलाइन है till 2nd August. So let me just clear this. Yeah, so उसमें आपके पास time है till 2nd August, so you can resubmit your work and let's see how it goes, right? So ये तो आपका crash course था for linguistics. अब जो आपका main topic था, that was speech and language development. ठीक है, इसमें आपको ये क्लिप आपको देखनी थी, और इसके साथ आपके टास्क थे to share 2 or 3 reasons why speech and language development is important.
like why learning about it is important. And then you had to respond to 2 or 3 of your peers and share your thoughts with them and ask them short questions or give them feedback, and be as concise as you could be. इसमें भी ग्रेडिंग जो है आपकी कॉम्पिटेंसीज पे डिपेंड करती हैं, और जो है आपका ये peer reviewed activity है, so you had to review other participants work, और इसमें आपकी अटेंडेंस उसी तरह से कमेंट पे बेस्ड है कि अगर आपने कमेंट लिखा है तो उसके बेस पे आपकी अटेंडेंस होगी। बाकी ये कि जो आपका स्कोर है वो आपके क्वेश्चन पे के आंसर पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको आंसर किया है, राइट। अगेन वही सारी चीजें कि ग्रामेटिकल एरर्स और कोई चीज मिस तो नहीं की, प्लेजराइज तो नहीं है आपका मटेरियल। और ये है अगर आपने रीजन दी है तो रीजन ये ना हो कि या इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज गुड, या इस तरह से करके रीजन नहीं, बट यू हैव एक्चुअली थॉट डीपली अबाउट इट। तो आपका जो आंसर है उस पे आपने ज्यादा गौर और फिक्र किए हो, और ये ना हो कि आपने बस you have just given an answer in a rush, like just getting done with your work। इस तरह ना हो, सिर्फ जान नहीं छुड़ानी है आपने काम से, बल्कि आपने उसके ऊपर सही सोच के टाइम दे के आपने रिस्पॉन्स दिया। अगेन the deadline for this task is 2nd August, so you can resubmit your work if you haven't done it the way you are supposed to do it, right? उसके बाद आपके पास है स्टेजेस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें भी आप या तो आप यही वीडियो देख के आप उसके स्टेजेस अंडरस्टैंड कर लें, और मे बी इफ यू कम अक्रॉस समथिंग मच मोर इजियर, लेकिन ये कि मेन पॉइंट ये है कि आपको स्टेजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था दैट वाज regarding observing a child in your family or around you and share at least 2 or 3 example कि वो किस स्टेज पे हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के किस स्टेज पे हैं। तो आपने ये शेयर करना था, और आपने जो जिस चाइल्ड को ऑब्जर्व किया है उसके एज बतानी थी, and no extra information like their name or their parents name or anything like that, yeah, what your relation is with them। बस सिर्फ आपको उस चाइल्ड के ऑब्जर्वेशन से ही आपका जो है वो पर्पस है, कंसर्न आपका उसी से कि भाई उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज क्या है और उसकी एज आप बताते हैं, क्योंकि एज और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसका भी थोड़ा बहुत फिर बाकियों से फिर आप कंपेयर करते हैं कि अच्छा नॉर्मली किस स्टेज पे जो है वो किस स्टेज पे होना चाहिए और ये जो है किस स्टेज पे है। तो स्पीच डिले भी एक चीज होती है, तो वो भी आपको फिर समझ आने लगती है कि अच्छा अगर इसकी एज जो है वो ये है लेकिन अभी भी उसकी स्पीच डिलेड है, तो उस पे फिर आप ये कि उनकी थेरेपी होती है। तो ये जो है आपका एम था कि आपने किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना था जो कि आपके फैमिली में से हो या आपके रिलेटिव्स, या जो फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स उनके घर में कोई। तो ये आपका टास्क था, एंड यू हैव टू पोस्ट टू एटलीस्ट 2 or 3 ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड आप उनसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। उनको आप फीडबैक ये नहीं है ओ एक्सीलेंट पॉइंट, मतलब दैट इज फीडबैक, लेकिन फीडबैक इस सेंस में कि आप उनके साथ डिस्कशन कैरी ऑन रखें ना। उसके बाद अगेन दिस इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटेंसीज एंड ऑल्सो पेयर रिव्यूड है, और दूसरा ये कि आपकी अटेंडेंस जो है वो आपके कमेंट लीव करने पे बेस्ड है, एंड योर स्कोरिंग और योर ग्रेडिंग is based on how you are responding। और आपने अगेन वही सारी चीजें, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, प्लेजराइज्ड तो नहीं है, इन डेप्थ एनालिसिस है, और आपने कोई यू हैवंट डन इट इन अ रश, एंड आल्सो you haven't missed any of the parts of the question।
तो या टास्क, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, इससे रिलेटेड ये है कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन ये हम स्पेसिफिकली राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं कि भाई राइटिंग कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, और जो है डॉक्यूमेंटेशन कैसे शुरू हुई थ्रू रिटन वर्क। तो ये उस चीज की हिस्ट्री पे ज्यादा, इट इज वास्ट, लाइक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज वास्ट सब्जेक्ट, और उसकी तो स्पेशलाइजेशन एक अलग सा सेमेस्टर भी आपका इससे रिलेटेड होगा। लेकिन जो इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और उस तरह का, तो ये आपका राइटिंग पे ही फोकस्ड है, ठीक है। सो सम ऑफ द लर्नर्स वर कंफ्यूज्ड कि ये क्या है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लेकिन हम राइटिंग पे फोकस करें, तो हम राइटिंग पे ही फोकस करें हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में। अदरवाइज बहुत ज्यादा ये वास्ट है सब्जेक्ट। इनफैक्ट जो आपका लिंग्विस्टिक्स है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। अब देखिए, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है, साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है, मतलब इट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपका। एक इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स जो है वो इवन फिलोसफी से रिलेटेड है। और जैसे अगर आप MIT को देख लें, जो वर्ल्ड टॉप 5-10 यूनिवर्सिटीज में आती है लिंग्विस्टिक्स में, तो उसमें ये है कि लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट फिलोसफी के साथ है, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स। तो ये चीज है कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी और काफी वास्ट है। अच्छा, इसमें हमने हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री क्यों रखी थी? इस वजह से कि जाहिर है, पहले हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा, हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है कि कब फिर राइटिंग शुरू हुई, और वो जो पुराने, मतलब जो आसार कदीमा की जो चीजें हैं, उसमें फिर ये कि रिटर्न में भी चीजें मिलनी शुरू हुई। और इस वजह से जो है हमने राइटिंग की जो हिस्ट्री है ना, वो हमने पहले हिस्ट्री को समझा कि अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से कैसे शुरू हुए, किस तरह हुआ, और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न हिस्ट्री पे आए, ठीक है। तो इसमें अगेन आपको ये बताना था कि कैसे जो राइटिंग है ना, वो हमें हेल्प करती है हिस्ट्री को जानने में। मतलब राइटिंग से हमें फिर क्या पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, और क्या पता चलता है। तो आपने 2 या 3 सब्सटेंशियल रीजंस देनी थी कि भाई कैसे हमें रिटर्न जो चीजें हमें मिली हैं, पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिली है, तो उससे हमें हिस्ट्री को जानने में और क्या मदद मिलती है रिटर्न जो चीजें हैं उसके थ्रू। और दूसरा ये कि अगर आपने जनरल रिस्पॉन्स दिया है, तो उससे आपका जो टास्क है ना, वो डन नहीं कंसिडर होगा। सो यू हैव टू गिव सब्सटेंशियल रीजन। उसके बाद ये कि आपने 2 या 3 जो लर्नर्स है उनको फीडबैक देना है, और आपने बताना है कि अगर आप एग्री कर रहे हैं, व्हाई यू एग्री, एंड इफ यू आर डिसएग्रीइंग विद देम, व्हाई डू यू डिसएग्री, राइट। और आपने फिर अपने भी एविडेंसेस देने, हिस्टोरिकल एविडेंसेस देने, अगर आप उनसे किसी चीज पे डिसएग्री कर रहे हैं। Again, it is graded based on your competencies, and you have to review work of your other peers, and your attendance is based on leaving comment, और जो आपका grade है, जो score है, that is based on answering questions. Again, इसमें भी वही बात है कि आपने जो आंसर किए हैं क्वेश्चंस, वो इनकम्प्लीट तो नहीं है, टास्क आधा चौड़ा तो नहीं है, या ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, इन डेप्थ एनालिसिस है आपकी, और ये कि प्लेजराइज्ड तो नहीं है। तो ये चीज है। अच्छा, उसके बाद ये एनिमेटेड मूवी ऑन हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, there was no task related to it, you just have to watch it like at your own pace, जब भी आपका मूड हो तो तब, ठीक है। So if you still wanted to share your thoughts, you are allowed, and you are more than welcome to share your thoughts.
सो इसमें खास कोई क्रेडिट नहीं था। ठीक, उसके बाद हमारे पास है डेविड क्रिस्टल का जो इंटरव्यू था। अच्छा, टास्क आपके सारे 2 अगस्त तक टाइम है आपके पास, ठीक है। सो इससे रिलेटेड टास्क आपको अपना मेन टेक अवे शेयर करना था, 2 या 3, कि आपने इस इंटरव्यू को सुनने के बाद क्या 2 या 3 जो उनके बातें हैं, क्या 2-3 चीजें आपने उसमें से सीखी। सो यू हैव टू वॉच दिस इंटरव्यू, ठीक है। In this task, you are expected to respond to at least 2 or 3 pairs. Again, which is कि आपने उनके साथ अपने थॉट शेयर करने हैं, और हाँ, आपने डिस्कशन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ डिस्कशन बोर्ड में दिए गए हैं, आपने वो पढ़ के फिर रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। ये नहीं है कैपिटलाइज्ड करके, फॉर एग्जांपल जो इस तरह होता है, कैपिटलाइज्ड करके सारे वर्ड्स या कुछ वर्ड्स कैपिटलाइज्ड करके लिखे जाते हैं, दैट कम अक्रॉस लाइक यू आर येलिंग एट दैट पर्सन। सो आपने बहुत ज्यादा जो है सोच के आपने रिस्पॉन्सेस देने, ठीक है, रिएक्शनरी नहीं होना। उसके बाद ग्रेड्स अगेन बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटेंसीज, एंड यू हैव टू रिव्यू योर peers work, and your attendance is based on leaving comment, and your score is based on completing the task, और जिस तरह से आपसे एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वीक 12 में आपको जो फीडबैक दिया गया है वो सम ऑफ यू हैड नॉट रिस्पॉन्डेड, तो उस वक्त से पहले आपको ये फीडबैक दे दिया गया था। सो यू डोंट नीड टू वरी, उसके ऊपर हम वापस आएंगे, राइट। I mean, giving back the feedback. So some of you were concerned ke what about my response or my submission. तो उसका ये है कि बाद में वापस जो है उनके बारे में रिव्यू दे दी जाएगी, सो डोंट स्ट्रेस आउट अबाउट इट। अच्छा, वीक 12 में हमारा है इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, यानी जो लैंग्वेजेस खतरे में है या जो एक्सटिंक्शन के खतरे में या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, या जो अभी डाई आउट होने वाले हैं। तो वीक 13 में हमने उनके बारे में जो है वो सीखा, ठीक है। तो जो हमारा पहला इसमें टॉपिक है वो है हाउ लैंग्वेजेस बिकम एक्सटिंक्ट, कैसे लैंग्वेजेस जो है वो खत्म हो जाती हैं। जिस तरह से एनिमल एक्सटिंक्शन होती है ना, तो इसी तरह से लैंग्वेजेस भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं, खत्म होती हैं इनफैक्ट। So your task was to discuss at least 2 or 3 of the learning points or main takeaway. और ये है कि जिन्होंने पहले लेसन अपने लेसन शेयर किए, अपने टेक अवे शेयर किए, तो वो आपने रिपीट नहीं करने, और जितना आप लेट रिस्पॉन्स देंगे तो उतना ये होगा कि आपके लिए जाहिर है, मतलब वो अपने लर्निंग पॉइंट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। So another thing was to write it in your own words, otherwise it would be counted as plagiarism. और ये कि आपने इस वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी नहीं करना था, यानी आपने ये नहीं करना कि उन्होंने जो चीजें बोली आपने वर्ड बाय वर्ड वही चीज लिखी है। So avoid plagiarism at all cost and give reference if you take material from other places या other sources. तो आप जहां से भी अगर कुछ उठाते हैं तो फिर आपने उसका सोर्स मेंशन करना है कि आपने ये उठाया कहाँ से। अब जैसे ये अगर मैंने उठाया है यूट्यूब से, सो आई हैव मेंशन्ड इट सोर्स के भाई ये मैंने यहाँ से उठाया है। आई हैवंट रिप्रेजेंटेड इट एज माय ओन वर्क है, हाँ ये मैंने बनाई है ये वीडियो और ये वो, इस तरह से नहीं है, बल्कि आई हैव गिवन रेफरेंस कि भाई ये मैंने यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो आपने भी रेफरेंस देना है अगर आपने कहीं से कुछ उठाया है।
और वो भी ये कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि आपका इस वीडियो के देखने के बाद आपके क्या लर्निंग पॉइंट्स है ना, तो आपने ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो से जो आपके लर्निंग पॉइंट्स है वो उठाने हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीज मिलती है कहीं किसी और सोर्स से, लेकिन उसका इस वीडियो से रिलेशन फिर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि हाँ इस वीडियो में मैंने ये सीखा कि हर इतने इतने टाइम पीरियड के बाद लैंग्वेज की जो है वो डेथ हो जाती है, एंड दिस इज द सेम थिंग व्हिच आई केम अक्रॉस फ्रॉम दिस एंड दिस सोर्स, तो फिर आप कोई एक्सटर्नल सोर्स भी मेंशन कर लेते हैं कि भाई मैंने फलाना जगह भी ये पढ़ा था, तो इस वीडियो में जो ये चीज बताई गई है वो फलाने फलाने बुक में या फलाना सोर्स में भी मेंशन हुई है। तो मतलब आपकी कोई वजह होनी चाहिए इफ यू आर मेंशनिंग समवन एल्सेस वर्क, बेशक आप उनका रेफरेंस भी दे रहे हैं, लेकिन उसका रिलेशन आपके मेन टेक अवे से क्या है, तो फिर उसका वो रिलेशन और कनेक्शन भी होना चाहिए ना। तो उसके बाद अगेन इट इज peer reviewed and share your thoughts and ask questions, और लेकिन ये कि आप उनके साथ डिस्कस करें, सिर्फ ये भी नहीं है कि क्वेश्चंस पूछें और भी वेल डन और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स दे, बल्कि यू डिस्कस विद देम, राइट। Again it is graded based on your competencies, and you are graded either as competent or not yet competent। आप बिल्कुल खत्म नहीं है, मतलब आप फेल नहीं है, you still are pass, लेकिन ये कि फिर आप टॉपर में नहीं होंगे अगर आप सिर्फ not yet competent का आपको ग्रेडिंग मिली है। Your attendance is based on leaving comment, and again your score or your grades are based on how you are answering the question। आपने प्लेजराइज नहीं है आपका काम, आपका जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस आपने की है, और आपने जो है टास्क इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, तो ये सब चीजें जो हैं कि आपके ग्रेड्स इन पे डिपेंड करते हैं। So how do you save language from extinction? इसमें भी आपका टास्क जो है वो यही है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने 2 या 3 जो लर्निंग पॉइंट्स है वो शेयर करें, एंड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन कि आपका जो है वो किसी और ने जो मेन पॉइंट शेयर किए हैं आपने वही रिपीट तो नहीं किए। और दूसरा ये कि आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, और रेफरेंस दें अगर आपने कहीं और से मटेरियल उठाया है, बट इट हैज टू हैव कनेक्शन विद योर मेन टेक अवे, राइट, जो भी आप सोर्स कहीं और से भी अगर उठा रहे हैं। इट इज peer reviewed, 2 या 3 लर्नर्स को आपने फीडबैक देना है, यू एक्चुअली डिस्कस विद देम, और ग्रेड्स जो है वो आपके कॉम्पिटेंट और नॉट येट कॉम्पिटेंट वही स्केल आपका यूज है इसमें भी, और पेयर रिव्यूड एक्टिविटी है, अटेंडेंस जो है वो काउंट होगी और आपके कमेंट पे बेस्ड होगी। और दूसरा ये कि आपका जो ग्रेड्स हैं वो आपने क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर किया है, ठीक वही चीजें कि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, इनकम्प्लीट ना हो टास्क आपका, ये नहीं है कि आपने एक ही टेक अवे शेयर किया है दूसरा नहीं, दूसरा अगर शेयर किया है तो दूसरा उससे रिलेटेड ना हो, रिपीटेड टाइप ना हो, तो ये सब चीजें जो है वो आपके ग्रेड्स उसी पे डिपेंड करती हैं, प्लेजराइज ना हो आपका काम। And then the language only 3 Pakistanis speak, and Mother Language Day in Pakistan, which was celebrated in the beginning of this year। अच्छा, इसमें ये है कि कोई टास्क नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो शेयर की गई है। तो if you wanted to share your feedback or reflection or thoughts, you are more than welcome to do that। इसमें भी आपका ये है कि इंटरव्यू है जिन पाकिस्तानीज ने मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया था, तो
ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है ये यूनेस्को के वेबसाइट में जो है वो थीम भी देते हैं कि इस साल का थीम क्या है और ये सब कुछ। तो ये साल के शुरू में जो है ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल पाकिस्तान में लिटरेरी फेस्टिवल में मनाया गया था इस्लामाबाद में। तो ये आपके सारे टास्क थे और जो है आपका इस वीक आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा इसी वीक इनफैक्ट आई थिंक टुडे, तो उसमें ये होगा कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो दोनों सब्जेक्ट्स का अलग अलग आपको दे दिया जाएगा, राइट। तो उसकी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को इसी वीक में ही बताऊंगी, राइट। So that's it for now. And if you have questions, you can leave them in the comment section and you can email me, or you can even network with me through LinkedIn and ask me questions, or maybe share your learning. So see you in next session.